वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सभी इस शो को देखने के लिए आज इंतजार कर रहे होंगे। आज हमारे शो में जो शख्सियत आपके सामने है, ही इज नन अदर देन ऑनरेबल रविंद्र वर्मा सर, who is known for practicing in hardcore criminal cases such as 304B as well as 376D and so many things. So sir is well known for his practice. I would say we are heads of that. We have got a chance to meet with sir, and sir has given such a nice time for us. I would say some lines before initiating. I would give a chance to sir. That is, sir has been practicing with us and giving the blessings to all the juniors since last 33 years. And sir, as earlier sir has done MSc in math, later on he planned to join LLB, and now sir is such a nice place that everybody feels that I should achieve such pinnacle of the success at his life in this short span of time. So I hope I request sir to carry on the further topic. Sir, our topic for today is section 9. So very first I would request, please tell us something about the scope of section 9. Actually, section 9 is section when one of the spouse withdraws from the society of another without any reasonable cause, then another person file a petition before the court for restitution of conjugal rights. तो जहां पर भी इस तरीके का मैटर होता है कि हस्बैंड और वाइफ हैज लेफ्ट हर और हिज स्पाउस, देन सच पिटीशन कैन बी फाइल्ड and the court can pass decree for restitution of conjugal rights. सर, जनरली ये देखा गया है कि डिक्री मिल जाती है और डिक्री मिलने के कितने दिन बाद एक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए? Tell something about that decree and the remarriage. Restitution की डिक्री अगर मिल जाती है, then it means that the spouse who has withdrawn from the society has been directed to live with her spouse. Okay. तो marriage can be performed after divorce. Okay. Restitution of conjugal rights means that she has to go with her, to live with her husband. I mean to say that after divorce, decree of divorce, I wanted to say. Actually, section 9 is one of the ground of divorce, and if restitution of conjugal rights में डिक्री अगर कोर्ट ने पास कर दी है, and after passing of that decree 1 साल तक भी अगर restitution नहीं होता है enforce, then it is a ground for divorce. And second marriage can be performed only after getting divorce. Okay, what will be the limitation period? I wanted to ask that. 1 साल होता है restitution की डिक्री होने के बाद में. No, after divorce I wanted to ask. After divorce तो appeal period के बाद. Okay, sir, that period actually we are 90 days. Okay, 90 days. And 90 if days. sir, special sometimes we file 13B. So in that situation also at 90 or something else is there. 13B में तो 6 months का टाइम प्रोवाइडेड है कि 6 months का टाइम होगा, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आया है कि दैट पीरियड कैन बी वेव्ड ऑफ इफ द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली फॉर द लास्ट 2 or more years. तो उसमें दैट पीरियड कैन बी वेव्ड ऑफ, बट स्टैट्यूटरीली इट इज 6 months. 6 महीने के लिए वो होता है. अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो वो पहले भी हो सकता है, अगर इफ दे आर लिविंग since long, they are living separately since long. सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूज जनरली दिमाग में रहता है, 6 month कूलिंग भी निपट गया, डिवोर्स भी हो गया, डिक्री भी होगी, अब कितने दिन बाद शादी कर लें सर? 13B में तो कोई फर्दर लिमिट. सर, जनरली दिमाग में ये आता है अक्सर कि 13B फाइल कर दिया, 6 महीने कूलिंग पीरियड निकल गया, इसके बाद अब कितने दिन वेट करें डिवोर्स होने के बाद, डिक्री मिलने के बाद भी रीमैरिज के? 13B में डिक्री होने के बाद में कोई वेट करने का सवाल नहीं, क्योंकि कई बार जो पिटीशन इटसेल्फ में ये क्लॉज होता है कि आफ्टर दिस डिवोर्स बोथ द पर्सन्स विल बी फ्री टू रीमैरी. तो इसमें कोई, क्योंकि व्हेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अपील, क्योंकि दोनों ने मिलकर ही डिवोर्स लिया है, दोनों की रजामंदी है, दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसमें कोई फर्दर मैरिज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 13B में अगर मैरिज हो गई तो कई बार पिटीशन में ही ये मेंशन होता है, एंड समटाइम्स पिटीशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ डिक्री, कि जो पिटीशन में आपकी कॉम्प्रोमाइज की टर्म्स हैं या जो आपके म्यूचुअल सेटलमेंट की टर्म्स हैं, वो सारी सेपरेटली डिक्री में और जजमेंट में इनकॉर्पोरेट करने की जगह उस डिक्री को ही पार्ट बना दिया जाता है, उस पिटीशन को ही उसका पार्ट बना दिया जाता है. जैसे आपने कूलिंग पीरियड 6 month कहा था, वैसे मैक्सिमम सारे 18 months होता है. अगर कूलिंग पीरियड खत्म हो जाए तो भी
क्या डिवोर्स की जो म्यूचुअल पिटीशन जिंदा रहती है या समाप्त मान ली जाती है? डाइवोर्स की पिटीशन डिसाइड होने के बाद खत्म हो गई। है ना सर, कूलिंग पीरियड जैसे लेट से आज हमने एक केस फाइल किया 13 6 महीने, हाँ 6 महीने मिनिमम कूलिंग पीरियड है, हाँ, मैक्सिमम कूलिंग पीरियड इज 18 हाँ मंथ्स। हाँ हाँ लेट से वो कूलिंग पीरियड 6 महीने से कम करने के लिए तो आपने सर एक लॉ बताया, एक लॉ है, हाँ सर 18 मंथ्स अगर हो गए हैं, अब इसके एक्सीड करती तो उस पर सर क्या कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ हो या अगर इतने में भी अगर डिसाइड नहीं होती है, हाँ सर, तो क्या Then डिसमिस होगी या क्या होगी सर? नहीं, डिसमिस नहीं होगी, इट मे बी डिले ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट और एनी अदर रीजन, लेकिन वो खत्म नहीं होगी, वो इट मे टेक सम मोर टाइम बट इट विल बी डिसाइडेड ऑन मैरिज। सर हम लोग लगता है डिवोर्स के मैटर में ज्यादा चले गए, हाँ, हम लोग सेक्शन 9 पे आए हैं। तो सर जनरली सूट फाइल हम लोग करते हैं सर, उसमें कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं सर, हाँ। वो उसके बारे में सर कुछ अगर एक्सप्लेन करें। देखिए, सेक्शन 9 का जो मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट कहिए या मिस कॉन्सेप्ट कहिए, नॉर्मली क्या होता है कि वाइफ एक झगड़ा करके या नाराज होकर के चली गई, अब हस्बैंड तुरंत क्या सोचता है कि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव करने की पहले कोशिश करूं, तो उसको ये लगता है कि मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव कर सकता हूं कि मैं बड़ा राजा बेटा बनकर के सेक्शन 9 फाइल कर दूं कि देखो हम तो अपनी बीवी को बहुत चाहते हैं, हम तो वापस बुलाना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, ये ड्यूअल अप्रोच है। और दूसरा ये होता है कि आदमी ये सोच करके फाइल करता है कि हम सेक्शन 9 फाइल करेंगे और उसको ये मालूम है कि जिस तरीके से डिफरेंसेस के बाद में वाइफ गई है, इसको लौटना तो है नहीं, तो वो लौट करके नहीं आएगी और फाइनली अगर कोर्ट से डिक्री हो जाएगी तो भी वो रिफ्यूज कर देगी, देन इट विल बी ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। लेकिन उसमें उल्टा कब पड़ जाता है, सबसे पहला तो मैं क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि सेक्शन 9 के फाइल कर देने से कोई आपको एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं। आपने ये अपने को इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक आपने सेक्शन 9 फाइल कर दी, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब आपने एक सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल की तो डेफिनेटली आप अपनी वाइफ में कोई कमी या कंप्लेंट उसकी नहीं बता रहे हैं। आप तो ये बता रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ भी डिफरेंस है जिसकी वजह से चले गए और मैं तो अपनी बीवी को बिल्कुल साथ ही रखना चाहता हूं और मेरा तो उसके बिना काम नहीं चल रहा है और मैं तो बहुत चाहता हूं। फिर जब उधर से काउंटर एलिगेशंस या एफआईआर आती हैं, जब एफआईआर आएगी, डोमेस्टिक वायलेंस आएगा, तो आप सब्सिक्वेंटली ये भी कहने की पोजीशन में नहीं रहे कि मेरी वाइफ में ये कमी थी, ये झगड़ालू थी, इसका बिहेवियर सही नहीं था, ये डिसरेस्पेक्टफुल थी या ये एडल्ट्री में थी, तो आप ये कह नहीं पाएंगे क्योंकि सेक्शन 9 से आप बंध चुके। एक पिटीशन आपने फाइल ये कह करके की कि अब हम तो वाइफ को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो रखना तो आप तभी चाहते हैं जब आपकी वाइफ में कोई कमी है नहीं, आपकी तरफ से वाइफ तो ठीक है, आपकी तरफ से ही कोई कमी रही हो या अदरवाइज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो तो आप ये कहते हैं कि हम साथ में रखना चाहते हैं, तो ये ड्यूअल अप्रोच हो जाती है। और अगर आप उसको वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स सीक करने के लिए फाइल करते हैं तो डाइवोर्स के तो और भी ग्राउंड्स हैं, डाइवोर्स के तमाम 8-9 ग्राउंड्स हैं, एडल्ट्री, डिजर्शन, क्रुएल्टी और इंसैनिटी वगैरह जितने भी 8-9 ग्राउंड्स हैं वो तो स्टैंड फिर भी करते हैं, आप उनको लेकर के मेरिट पे फाइल कर सकते हैं, तो आपका एक अपना वर्जन भी होता है वो स्टैंड करता है, ठीक है। वो आप अपना वर्जन लेकर के आप अगर चलते हैं, जो सवाल सेटलमेंट का या म्यूचुअल रिकंसिलिएशन का वो तो डाइवोर्स के केस में भी हो जाता है। डाइवोर्स के केस में भी जो कोर्ट होती है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट यही होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा निपट जाए और दोनों साथ में घर जाएं। तो ऐसा नहीं है कि वाइफ सेक्शन 9 से ही फाइल कर सकती है, तो सेक्शन 9 को लेकर जो डबल स्टैंडर्ड लोग एडवाइस भी करते हैं गलत, ये लोग एडवाइस भी कर देते हैं कि अगर जो है वाइफ चली गई तो सबसे पहले अगले दिन सेक्शन 9 फाइल कर दो, नहीं तो वो एफआईआर करा देगी, तो आपको उससे कोई बेनिफिट मिलता नहीं। लोग सोचते हैं कि हमने सेक्शन 9 फाइल कर दिया तो हमें एफआईआर में या बेल में या सब्सिक्वेंट किसी स्टेज पर कोई हमें इससे बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन उससे क्रिमिनल में मिलता कुछ नहीं, क्योंकि तब वो स्टैंड वही करते हैं जो एफआईआर में एलिगेशंस आते हैं। तो अगर तो आपका वाकई बुलाने का मन है, आप समझते हैं रिकंसिलिएशन हो सकता है, दोबारा से मैरिटल लाइफ कंटिन्यू हो सकती है, तो अच्छी नीयत से और क्लियर इंटेंशन से आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो इट इज फ्रूटफुल। अदरवाइज आप डबल स्टैंडर्ड लेके करते हैं कि हम तो सिर्फ एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स करने के लिए ले रहे हैं या अपनी इनोसेंस शो करने के लिए ले रहे हैं, तो वो बाद में नुकसान करती है, फिर आप कुछ अपनी वाइफ के अगेंस्ट एलिगेशन लगा नहीं पाएंगे जब आप एक सेक्शन 9 फाइल करते हैं। सर चूंकि आप 304B जनरली सर केसेस देखते हैं, तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा सर, मान लेते हैं कि एक पक्ष ने सेक्शन 9 फाइल करके रखा, क्या इसका बेनिफिट अगर पत्नी आत्महत्या कर लेती है या लेट्स से व्हाटएवर द रीजन इज अननेचुरल डेथ हो जाती है, सो उस पर सर क्या कुछ मतलब रिलीफ मिलता है? कुछ भी नहीं, 0%। नहीं तो सर वो अपनी वाइफ की छोटी छोटी गलतियों को माफ करती, बट वाइफ पता नहीं किस कारण से मायके में मर गई सर, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन सेक्शन 9 का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप उसको अदरवाइज 304B का केस है, आपके पास अपने फैक्ट्स और मेरिट्स हैं, आप उस पर कॉन्टेस्ट करेंगे, आप अपनी बात बताएंगे। सेक्शन 9 की बात अब मान लीजिए
कोई वाइफ है, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो आपको छोड़ के तो चली गई इस वजह से, आपको ये पता भी है, अब उसकी शादी हो गई है, आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, वो जाके सुसाइड कर लेगी, तो आप सेक्शन 9 जब फाइल कर चुके तो आप तो बाद में ये भी 304 बी में स्टैंड नहीं ले पाओगे कि इसके तो कहीं और रिलेशंस थे इसलिए मुझे छोड़ के गई इसलिए सुसाइड। तो आपका जो डिफेंस स्टैंड कर सकता है मेरिट्स पे, आपने वो भी स्पॉइल कर लिया। तो वो सेक्शन 9 जो है वो ऐसे में तो बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि आप अगर दो चीजें होती हैं, अगर वाइफ गई है तो आप सही हैं और वाइफ गलत है, तो आपको वो गलत है का स्टैंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेना पड़ेगा। आप अपना एक हिपोक्रेसी के लिए जो है आपने ढोंग दिखाने के लिए कर दिया कि हम तो भैया बहुत राजा बेटा हैं और हम तो बुलाना ही चाहते हैं, तो ये लीगली वर्क नहीं करता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि जूनियर एडवोकेट ही एडवाइस कर देते हैं, वाइफ चली गई सेक्शन 9 कल फाइल कर दो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट इन द लॉन्ग रन नहीं मिलता। अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे लव मैरिजेस के केसेस होते हैं, वाइफ और हस्बैंड तो आपस में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, लड़की को घर वालों ने बुला लिया, उसको डिटेन कर लिया वहां की, अब तुम्हें नहीं जाना देंगे, तुमने लव मैरिज की नहीं जाना देंगे। देन देयर आर टू रेमेडीज, या तो आप हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस में जाएं कि उन्होंने हमारी वाइफ है उसको डिटेन कर लिया, जबरदस्ती आने नहीं दे रहे हैं, या आप सेक्शन 9 फाइल करिए कि भैया हमारी वाइफ है हमारे साथ क्यों नहीं रह रही, उसको भेजा जाए, तो नोटिस जाएंगे, उसका कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ उसका फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगे। तो सेक्शन 9 क्लियर इंटेंशन से अगर है तो बहुत अच्छा एक प्रोविजन है, और आप उसको गलत बेनिफिट लेने के लिए करते हैं तो बड़ा हार्मफुल है। सर आपने जैसे हार्मफुल बताया, इंटेंशन बताया, सर वैसे आखिर किस स्टेज पर आ जाए तब सेक्शन 9 की सलाह सर दी जानी चाहिए वैवाहिक रिश्ते में? सिर्फ तब जब कुछ नॉमिनल डिफरेंसेस हो, जब ये बात हो कि हमें साथ में रहने की पॉसिबिलिटीज हैं, हमें डाइवोर्स नहीं लेना है, हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा हो सकता है, तब सेक्शन 9 फाइल करनी चाहिए। अगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इतना झगड़ा है कि आगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अब हम कभी साथ रहेंगे, वाइफ के माइंड में चाहे हस्बैंड के माइंड में चाहे दोनों के माइंड में, तो सेक्शन 9 से कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये ग्राउंड क्रिएट करने के लिए कि सेक्शन 9 हो जाएगा, फिर वो नहीं आएगी, फिर हम उसको वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्लेम करेंगे, उसकी जगह आपके पास 8-10 और ग्राउंड्स हैं, आप उस पर डाइवोर्स फाइल करिए। जो ऐसे मैंने बताया कि रिकंसिलिएशन, मीडिएशन, डाइवोर्स में भी हो जाता है, उसमें भी लोग घर चले जाते हैं साथ में, तो कोई ऐसी बात नहीं। सर अगर मैं कहूँ नटशेल में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेक्शन 9, सर अगर कुछ इलैबोरेट करेंगे। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस यही बताया कि अगर सेक्शन 9 से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो आप फाइल करिए। हिपोक्रेसी में या सिर्फ एक ग्राउंड सीक करने के लिए मत करिए। अगर कोई आपके वैलिड डिस्प्यूट्स हैं जो कि सॉर्ट आउट हो सकते हैं, हो सकता है सेक्शन 9 पे आप फाइल करें, बुलाया जाए और उसमें वाइफ भी आपकी किसी बात से एग्री हो, कुछ आप एडजस्टमेंट को तैयार हो, कुछ वाइफ हो, ये ऐसे आप थोड़ा सा तो आपस के बिहेवियर में एक्सपेक्टेड होता है कि हम कोई बात कहेंगे तो दूसरा समझेगा कि नहीं समझेगा, या बिल्कुल ही आउटराइट रिवोल्टिंग एटीट्यूड है, तो अगर कुछ चांसेस हैं तो सेक्शन 9 फाइल करें, और अगर नहीं है तो अपने सारे ग्राउंड्स एक्सप्लॉइट करके जो है सेक्शन 9 फाइल करने की जगह सेक्शन 13 से डाइवोर्स फाइल करें। सर मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यंग एडवोकेट्स इनिशियल तौर पर मैट्रिमोनियल केसेस को किस तरह से डील करें, सर उसके बारे में अगर कुछ पर्टिकुलरली सेक्शन 9 पे जो मैंने बताया, इन्हीं चीजों को ध्यान रखें कि अगर सिर्फ उसको रूटीन मैनर में कि जहां कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, वाइफ छोड़ करके गई, तुरंत सेक्शन 9 ना फाइल करा दें, क्योंकि उससे हमारे अपने ग्राउंड सब जो है उसमें खत्म होते हैं और वो सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं। अगर कोई वाकई में जेन्युइन केस है जहां पे मेरे पास भी कोई मैटर आते हैं, तो मैं पहले सबसे यही पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे को लगता है कि वापस कोई रिकंसिलिएशन का या वापस जाने का चांस है? हस्बैंड है या वाइफ है, उसने कह दिया ना हमारा तो अब कोई चांस नहीं, हम उसके साथ तो अब रह ही नहीं सकते, तो इस तरीके की सिचुएशन में सेक्शन 9 सिर्फ एक दिखावा है। उसको फाइल करने की जगह सीधे डाइवोर्स फाइल करें, अपने ग्राउंड्स क्लेम करें, उस ग्राउंड पे सीख करें, और अगर मीडिएशन में कोई बातचीत सॉर्ट आउट हो ही जाती है तो आपके पास वापस जाने का फिर भी ऑप्शन है। तो अननेसेसरी सेक्शन 9 की एडवाइस ना दें। जहां पे वाकई में कोई गुंजाइश या संभावना हो तो सेक्शन 9 के लिए एडवाइस करें, नहीं तो सेक्शन 13 इज बेटर ऑप्शन। ओके सर, जैसे कि आपने सेक्शन 9 बताया, सर इतने हजारों केसेस आपके सामने आए हैं, बीइंग नॉट अ लॉयर, अगर एक जेन्युइन एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचा जाए तो ऐसी क्या गलती है जो एक हस्बैंड वाइफ कर देते हैं? ऐसा ना करें तो उनके बीच झगड़े नहीं होंगे और मुकदमेबाजी से शायद बचाव हो। थोड़ा सा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एरोगेंस और ईगो, 3 चीजें हैं जो आपस में हस्बैंड और वाइफ में कंपैटिबिलिटी अब नहीं बन पा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों हस्बैंड और वाइफ इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, इक्वल जॉब में होते हैं, इक्वल अर्निंग में होते हैं। उससे एरोगेंस और एटीट्यूड और ईगो जो है बहुत ज्यादा राइज अप कर गई है।
क्योंकि कोई किसी से किसी तरीके से, आप देखिए थोड़ा सा इट में बी ऑर्थोडॉक्स व्यू, लेकिन पुराने समय में जब लेडीज कम एजुकेटेड होती थी या जॉब में नहीं होती थी या प्योरली हाउसवाइफ होती थी, तो उनका एक इंटरनल रीजन हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने का यह होता था कि मेरा जो है जीवन का सहारा यही। ये डेफिनेटली आज की जनरेशन ये शायद बड़ा ऑर्थोडॉक्स व्यू मानेगी कि ये इस तरीके का, लेकिन पहले यही सच था। आज के समय में मैं ये नहीं कहता ये प्रिवेल करता है या कर सकता है, क्योंकि आज दोनों लोग बराबर से पढ़े हैं, दोनों की पढ़ाई का खर्चा बराबर है, दोनों की कॉम्पिटेंस बराबर है, दोनों लोग इक्वली अर्निंग है, तो आज तो ये नहीं स्टैंड करता। लेकिन पहले जो ये मैटर्स कम थे, क्योंकि वाइफ की हस्बैंड पे डिपेंडेंस होती थी और वो ये समझती थी कि मेरे जीवन का सहारा ये है, तो कुछ सही गलत बातें आपस में एडजस्टमेंट में चली जाती थी। लेकिन आज कोई किसी के साथ में किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं चाहता है। हर कोई शादी होने के बाद में भी अपनी बिल्कुल फ्री लाइफ चाहता है। इस वजह से आपस में एडजस्टमेंट मुश्किल हो गई और प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। मैंने ऐसे मैटर में देखे जिसमें हस्बैंड था, उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग थी, सैलरी थी, उसकी वाइफ थी, उसकी 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी, दोनों ने डाइवोर्स लिया, दोनों आज अंदर सिंगल रह रहे हैं। सेकंड मैरिज भी नहीं की, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेंट्स है नहीं, अपना खा पी रहे हैं और मौज कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं अपना, कोई किसी तरीके के लाइफ पार्टनर की। ये हो सकता है कभी ओल्ड एज में जाकर के उनको रियलाइज हो कि हमको जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता है हमने उसको वायलेट करके और इंडिपेंडेंट लाइफ ली। लेकिन अभी के समय में तो जब जिस समय पैसा हाथ में और उम्र सामने है, तो फिर सभी कुछ करने को लोग तैयार हैं। सर चलते चलते लास्ट में मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वर्ड है प्री मैरिज काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। जैसा मोटी मोटी भाषा में कहा जाता है कि भाई काउंसलिंग करा लो पहले और नहीं तो अदालत में हो जाएगी। सो हाउ फार यू थिंक दैट प्री मैरिज काउंसलिंग में मतलब काफी हद तक मदद करेगी ऐसे मुकदमों? प्री मैरिज काउंसलिंग में मैं ये समझता हूं कि पहले तो दोनों लोगों को, हस्बैंड वाइफ जो होने वाले हैं, उनको आपस में थोड़ा सा टाइम और मौका इस बात का दिया जाना चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे का नेचर और चीजें समझ सकें। अगर एक दूसरे को थोड़ा सा, जैसे आजकल पहले के समय में नहीं था, लेकिन आज के समय में काफी टाइम तक जान पहचान लोगों की चलती है और एक दूसरे से मिलना जुलना है, बातचीत है और एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, तो उससे कुछ चीजें तो क्लियर हो जाती हैं। एक मीटिंग में आप किसी के बारे में जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके इंटरनल जो स्टेट ऑफ माइंड और जो उसके व्यूज और जो उसका एटीट्यूड है वो आप ना समझें। तो एक मीटिंग में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, एक मीटिंग में तो सभी दिखावा होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद में एक दूसरे को समझने की, बेटर एक अंडरस्टैंडिंग की एक सिचुएशन आती है, तो वो प्री काउंसलिंग बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा, दोनों की फैमिलीज को मिलकर के जरूर बैठ के बात करना चाहिए कि भाई ये जो है रियल फैक्ट्स हैं, ये इसका जॉब है, ये इसकी जो है वो अर्निंग है और ये इसका परिवार है, कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकती है वाइफ और कहाँ कहाँ नहीं कर सकती है। किसी का शुरू से होता है हम जॉइंट फैमिली में जाएंगे ही नहीं, तो ये आप पहले ही तय कर लें कि चलो ठीक है हम इसको अलग कर देंगे अगर उसी मैरिज में इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके की तो ये प्री मैरिज की हो गई। पोस्ट मैरिज तो आपके, मैंने बताया, किसी भी स्टेज पे हो ही सकती है। मैंने जो है खुद अपनी मैरिज से पहले अपनी वाइफ से जो है जो मुलाकात हुई थी, सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि तुमको एडवोकेट्स पसंद है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एडवोकेट का प्रोफेशन ही पसंद ना हो, क्योंकि कुछ लोग जो है जो क्लोज कांटेक्ट में और टच में नहीं होते हैं लीगल प्रोफेशन के, उन लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब एक कुछ गलत सा इंप्रेशन एडवोकेट्स के बारे में एक जनरल। तो मैंने तो सबसे पहले सवाल यही पूछा था कि एडवोकेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूं, मैं तो अपना प्रोफेशन तो चेंज नहीं कर दूंगा शादी के बाद। तो मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा था। तो इट मे बी ए प्री काउंसलिंग असर्शन कि मैंने पहले ही पूछ लिया कि अगर हो तो ठीक है, नहीं तो बात यहीं खत्म करें। तो सेम ऐसी रहा था। मेरे इन-लॉज में भी फादर इन लॉ थे लॉयर, तो उनको भी एक लॉयर ही चाहिए था, इसलिए भी मेरी शादी हुई। तो लास्ट नॉट द लीस्ट में कहूंगा कि सर ऐसी कौन सी 3 प्रायोरिटी एक वैवाहिक रिश्ते में, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ देखें, ऐसी कौन सी 3 प्रायोरिटी, अगर ये 3 प्रायोरिटी पूरी होती तो रिश्ता चलाया जा सकता है, ऐसी कौन सी 3 प्रायोरिटी? म्यूचुअल डेडिकेशन, लव, अफेक्शन, इतना अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे के लिए डेडिकेशन कि हम अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी के बारे में सोचें, आपस में वो अटैचमेंट और अफेक्शन और लव हो तो डेफिनेटली चल सकती है। और अगर पहले दिन से ईगो आ रही है कि नहीं नहीं हम कौन सा तुमसे कम है, तुमसे तो ज्यादा ही है, अगर ये है तो फिर तो 4-6 महीने, मेरे पास साल भर से कम में भी जो है वो मैटर आए हैं डाइवोर्स के लिए। एक बार मेरे पास एक लड़की अकेले आई, उसने कहा कि सर मुझको डाइवोर्स लेना है। मैंने कहा तुम्हारे क्या मम्मी पापा नहीं है? तो उसका बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, बोले कि डाइवोर्स में मदर फादर की जरूरत होती है?
मैंने कहा जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन एक सोशल स्ट्रक्चर है मैरिज का, तो अपने मदर फादर में किसी को लेके आओ। बोली फादर तो मेरे जिद्दी है, वो तो नहीं आएंगे, मदर को ले आऊंगी। मैंने कहा अच्छा मदर को लेके आओ। मदर आई। मैंने कहा क्या कह रही है, अभी इसकी 10 महीने शादी के हुए, कह रही है डाइवोर्स चाहिए। बोली अब करा दीजिए, ये नहीं मान रही है, इसको मैंने समझाया, पापा ने समझाया, ये नहीं मान रही, इसको डाइवोर्स ही लेने की जिद है, इसका डाइवोर्स करा दी। तो हमने कहा भाई तो 2 महीना और रुको, 1 साल से तो पहले डाइवोर्स हो भी नहीं सकता। वेरी नाइस। तो मैंने कहा 2 महीने बाद आओ तो फिर करते हैं कुछ कोशिश। उसके बाद उसने जैसे तैसे बिल्कुल लिटरली अपने हस्बैंड से जान छुड़ाई। बीच में बात ये हुई कि कॉम्प्रोमाइज में कि वो शादी का सामान जेवर कैश लौटा दो। लड़का जो था उसने कहा हम तो कुछ भी नहीं देंगे। बोले अरे मत दो, रख लो तुम, चलो हमें डाइवोर्स दो खाली। उसने खाली डाइवोर्स लिया, अपनी जान छुड़ाई और भागी। इतना मतलब वो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग। It was nice talking to you. Sir has given such a nice time to us. So we shall meet with you everyone next episode. So that's all for today. Have a nice day, everyone. थैंक यू।